Hello, people, and welcome to my channel, The Budding Entrepreneurs Podcast by Pooja Ramka. That's me. So, first of all, thank you so much for being so cooperative and so patient all along. ये वीडियो बहुत लंबे टाइम बाद आया है, but still you have been so patient. And the amazing response जो episode 3 के ट्रेलर को मिला है is just superb. And it got us more excited about this episode. So, thank you so much for staying tuned with us. And for those who are new, so this channel is all about budding entrepreneurs, their businesses, passion followers, industries and lot more. हम इस चैनल में बात करते हैं आज के एंटरप्रेन्योर से टू नो देयर जर्नी, देयर सक्सेस स्टोरीज, देयर स्ट्रगल स्टोरीज ऑफ हाउ दे आर सर्वाइविंग इनटू दिस इंडस्ट्रीज, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर डूइंग टुडे at the current situation to survive and to grow and to know the current scenario of the industries. So a lot of exciting things would be coming up, lot of exciting episodes will be coming up, so do stay tuned with us for long and subscribe to the channel. Episode 1 is with Jenny Surana and which is all about weddings and event industry. Episode 2 is with Falguni Mehta, who is a poetess, and it's all about poets, poetic field and a lot more. Very exciting videos, very interesting videos. Do check out both the episodes and let us know how you like it and share the videos to people who are interested in those areas. So do check out the videos and let us know. Talking about today's episode, if you have been following my Instagram pages, also any social media page, you would have known by now who is my next guest and what industry we have been talking about. If not, then go and follow the pages right now. All the links are given in the description box below. So in today's episode, we'll be talking to Saloni Garodia, an interior designer and owning her own company named Silverline Designs. This episode will be all about interior designing, interior designers, interior designing industry, what this industry is all about, how the perception of this industry has changed so far, what it is like to be a woman entrepreneur in the service industries. Do watch the full episode and let us know in the comment section how you like it. Do subscribe to the channel because a lot of videos, a lot of episodes with a lot of budding entrepreneurs will be out in my channel very soon. Also, to let you know, do follow all the social media pages of my channel because every day we give daily shout outs to one small businesses. That means that every day you get to be introduced to one new business every day. Isn't that exciting? So do follow all the pages, check out those businesses, let us know if you are a business owner and if you have any business, and if you know someone who has business and who needs to be introduced, connect with us or leave them in the comment section below. Let us begin the episode 3 by introducing you all Saloni Garodia. Let's begin. So Saloni, welcome to my podcast channel. Yes, Pooja, thank you so much. Who is Saloni Garodia? अपने बारे में बताएं. सलोनी एक बहुत ही मतलब नॉर्मल वुमन है जो चाहती है कि वो ऑब्वियसली अपना ड्रीम फुलफिल करे कि हम कैसे अपने आप को स्टेबल कर सकते, क्योंकि आज के टाइम में एक वुमन को स्टैंड होना बहुत जरूरी है. डिपेंडेंट होना किसी पे मतलब बहुत अजीब फील होता है, तो इट्स बेटर टू बी इंडिपेंडेंट. तो मेरा ड्रीम यही है कि मैं कुछ भी करूं इन फ्यूचर, कुछ भी रहूं, एटलीस्ट अपने ड्रीम और अपने वर्क से रिलेटेड रहूं हमेशा. हर एक वुमन को एक होना ही चाहिए कुछ ना कुछ. तो एज अ वुमन मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी एक अपने ड्रीम को हमेशा कैरी ऑन करके चलूं. So सलोनी गारोदिया अपने आप को बाय हर वर्क अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना चाहती है, राइट? मैं चाहती हूँ मेरे वर्क से ही मेरी पहचान हो, एंड दिस इज द मेन पार्ट कि मैं हमेशा वर्क करते रहना चाहती हूँ. आई नो बहुत सारा पॉइंट्स ऐसा आएगा इन फ्यूचर जहाँ ऐसे बहुत सारे पार्ट में लगेगा कि अब छोड़ना ही पड़ेगा, वर्क अब करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितना तक मैं कर पाऊँ मैं उतना करूँ. So you are from Kolkata, or you are the only child, or? We are 3 sisters and I'm in a joint family. My grandmother is there, my बड़े पापा बड़ी मम्मी and भाई भी है, भाभी भी है, and मेरी 3 sisters है. सबका आपके फैमिली का बिजनेस बैकग्राउंड रहा है अंकल आंटी का या? मेरे father is a businessman and he's from last 30 to 40 years he's from this line only. And मेरे बड़े पापा है, he's from the work line and he's doing his job from last 40 years. He's in jewelry line. So हमेशा से एम्बिशियस रही हो, हमेशा से ये रहा है कि मुझे अपना बिजनेस खोलना है, या फिर ये विद इन टाइम तुमको रियलाइज? एक टाइम था जहाँ पे मेरे को था कि कुछ सीखना है, क्योंकि बिना सीखे आप एक अचानक से एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे. यू हैव टू लर्न फ्रॉम समबडी, अंडर समबडी एंड गेट अ गाइडेंस कि आप क्या बन रहे हो.
तो मैंने भी 3 to 4 years मैंने जॉब किया है एंड आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, मतलब अ लॉट मीन्स अ लॉट। अगर हार्ड वर्क करना है तो आपको पहले किसी के अंडर सीखना होना बहुत जरूरी हो जाता है। सीखोगे आई गेस तभी वो होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको अच्छे से सिखाया जाए या कुछ वैसा, वो डांट वाली जब तक सीख नहीं मिले ना, जब तक कोई इंसान अच्छा नहीं बन पाता है। तो मेरे को लगता है कि वो एक बहुत जरूरी होता है कि गाइडेंस होना, कि आपको बहुत अच्छे से कोई सिखाए, एंड वो चीज मेरे को एक्चुअली मिला। तो मैं भी एक अच्छे से स्टार्टअप कर पाई एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने बहुत अच्छे से अपना, जहाँ भी मैंने एचपी डिजाइन से मैंने अपना वर्क किया एंड दे हैव टॉट मी अ लॉट। स्कूल टाइम से मन था बिजनेस करने का या बस पता था कि काम करना है? स्कूल टाइम से मन बिजनेस का था, लेकिन ऐसा नहीं मालूम था कि एक ड्रीम में रहते थे ना कि बस कॉलेज खत्म हुआ फिर अपना चालू हो जाएगा सब चीज एंड बस एकदम स्मूथली चलेगा सब चीज। बट फील्ड में आने के बाद सब चीज होता है ना कि एक स्टेप्स होते हैं ये सब के। अचानक से हम एक बिजनेस वुमन नहीं बन जाएंगे ऑल ऑफ अ सडन। ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है जो हमें सीखने पड़ते हैं। तो बिजनेसमैन रहे हैं तो इसलिए तुम्हारे अंदर रहा है कि मैं बिजनेस करूं, या यू वर लाइक नहीं जॉब भी चलेगा, या क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट पापा ने एक्चुअली बहुत सपोर्ट किया है मेरे को इसके लिए एंड पापा इज ऑलवेज बिहाइंड मी एंड ही इज ऑलवेज सपोर्टिव कि नहीं यू हैव टू डू, जो भी करना है, तुम्हारा जॉब का मन है, तुम्हारा बिजनेस का मन है, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। मैंने अपने पापा से बहुत सारी पॉइंट सीखी है एंड उनसे सबसे अच्छा बात यही सीखा है कि अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में करो एंड दूसरों के बारे में सोचो। एंड ही इज माई मेंटर, आई ऑलवेज मीन इट। एंड वो हमेशा सपोर्ट किए हैं हर चीजों में मुझे, तो मैं इसके लिए हमेशा ब्लेस्ड हूँ कि उन्होंने मेरे को हर चीज के लिए सपोर्ट किया एज अ बिजनेस वुमन भी। आज भी वो मेरे को, मतलब हर चीज में मैं उनसे बहुत सारी बातें अपनी शेयर करती हूँ, अपने काम से रिलेटेड, अपने जो भी चीजों से रिलेटेड होता है मैं उनसे हर रोज रात में बात करती हूँ उनसे। एंड जो भी मेरे को कुछ गाइडेंस होता है तो मैं उनसे भी लेती हूँ कि पापा ऐसे करना चाहिए, कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम आया, वट एवर इज देयर, आई ऑलवेज टेक गाइडेंस फ्रॉम। So he is a mentor plus friend and a Yeah, father. yes, exactly. इंटीरियर फील्ड का बात किया जाए, इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड का, तो तुम इस इंडस्ट्री में कब से हो? इस इंडस्ट्री में मुझे ऑलमोस्ट 5 years हो गए हैं। फ्रॉम लास्ट 5 years आई एम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री एंड दिस इंडस्ट्री इज एक्चुअली वेरी नाइस। अगर हमसे मेरा मन था कि एज ए मतलब कुछ डिजाइनिंग से रिलेटेड करना है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था डिजाइनिंग एंड ऑल करना। तो हर दिन एक कुछ नया डिजाइनिंग, एक सबसे अच्छा पार्ट ये है ना कि आपको हर दिन कुछ नया चैलेंज मिलता है, हर दिन कुछ नया करने को मिलता है। तो मेरे हमेशा से माइंड में डिजाइनिंग का मन था कि कुछ डिजाइनिंग से रिलेटेड करना है। तो जब मैं इस फील्ड में आई तब मुझे ये फील हुआ कि धीरे धीरे करके वो और ज्यादा सुंदर और अच्छा इमेजिनेशन आने लगा माइंड में कि और इससे इससे अच्छा और क्या हो सकेगा नेक्स्ट डे, ये चीज सोच के मैं आएगा। ग्रेजुएशन कॉलेज के साथ ही तुमने इंटीरियर स्टार्ट किया था? ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड माय इंटीरियर, सेकंड ईयर आई स्टार्टेड माय इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स। और कहाँ से कोर्स किया था? डन फ्रॉम INIT Salt Lake. It was a course for 2 years and I've done my course then to the job. और तुम बहुत अर्ली स्टेज में इंटीरियर डिसाइड कर ली थी, यू स्टार्टेड फ्रॉम ग्रेजुएशन कॉलेज, राइट? हाँ हाँ, ये चीज है। बट मैंने यही सोचा कि अगर अभी से ही कर लेंगे ना तो स्टार्ट में ग्रेजुएशन के साथ में कोर्स भी हो जाएगा, देन जॉब भी आफ्टर कॉलेज ही स्टार्ट हो जाएगा। एंड जब स्टार्ट कर लो तब अच्छा है कि जब मेरे को टाइम और मौका मिल रहा है तो ऑब्वियसली आई शुड डू दिस। एंड ये था कि इंटीरियर डिजाइनर क्यों बनना है, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों मन में आया कि एक घर को सजाने में जो मजा है ना, एक जो ड्रीम अपना माइंड में है उसको क्रिएट करने में जो मजा है ना, क्योंकि ड्रेस में भी फैशन डिजाइनर इज अ वेरी गुड डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म, बट आई वांट टू डू समथिंग रिलेटेड टू इंटीरियर्स। पता नहीं मन में आता था कि घर को सजाया या कुछ भी एक पार्ट को, एक स्पेस को सजाने में जो मजा है ना, जो एक स्पेस को डिजाइन करने में जो मजा है, वो कोई और चीज में पता नहीं आया मन में, तो यही लगा। So there is always a point in everyone's life कि वो फील्ड को चूज करने से पहले वो रियलाइजेशन मोमेंट होता है कि नहीं यार ये मेरा कॉलिंग है। सो व्हाट वाज दैट मोमेंट फॉर यू कि इंटीरियर्स मेरा कॉलिंग है? ये तुमको कैसे रियलाइज हुआ? एक्चुअली मेरे घर का रेनोवेशन भी हो रहा था जब मैं कॉलेज में थी। तो उस टाइम जब रेनोवेशन हो रहा था ना, तो पता नहीं क्यों ऐसे मन में आ रहा था कि मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ गया था इसमें एंड मेरा उसी टाइम कॉलिंग, मतलब वो एक बोलते ना, एक पॉइंट होता है कि हाँ इस टाइम पे मुझे अच्छा, एक तो साथ साथ तुम्हारे सामने सब चीज हो रहा है तो तुमको इंटरेस्ट भी अगर ज्यादा आ रहा है तो तुमको समझ में एक रिंग सुनाई देती है तुम्हें कि नहीं इसमें तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मेरे को ये करना ही चाहिए। उस कोर्स में क्या सिखाया जाता है? लाइक आई थिंक किसी भी स्टूडेंट के इस इंस्टीट्यूट में जाके क्या फायदा मिलेगा, और मुझे अपने पेरेंट्स को मैं क्या बताऊं, क्योंकि अगर हम लोग इंस्टीट्यूट को अप्रोच करते हैं तो ऑब्वियसली दे विल से ऑल द गुड पॉइंट्स कि वी डू दिस वी डू दैट एंड एवरीथिंग।
बट अगर तुम एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन बताओ कि क्या होता है एंड व्हाट डिड यू लर्न एंड पीपल शुड इन टुडेज टाइम शुड डू और नॉट. Absolutely, they should do because it's a very good job and it's a very good work जहाँ पे माइंड हर दिन कुछ क्रिएटिव करने को करता है. प्लस दूसरा चीज ये है कि अगर आप इंस्टीट्यूट से सीखते हो तो उसका बहुत प्लस पॉइंट्स है कि आपको बेसिक चीजों से सिखाया जाता है. आज हम लोग स्कूल बिना जाए भी तो सीधा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना. अगर आपको सीखना है तो यू शुड गो टू द इंस्टीट्यूट एंड यू हैव टू लर्न कि उनका बेसिक्स क्या होता है. ऐसे बहुत सारे हमारे इंटीरियर में वर्ड्स होते हैं जो हम लोग शायद उस टाइम इतना माइंड में भी नहीं लेके आते थे. जब हम लोग नॉर्मल थे, हम लोग जब ज्वाइन भी नहीं करते, हम लोग को मालूम ही था, वर्ड सुने हुए हैं बहुत सारे, बट कभी ऐसे माइंड में आया नहीं कि हाँ ये भी वर्ड्स हो सकते हैं. बट जब हम लोग इंस्टीट्यूट कर रहे थे अपना, जब हम लोग का कोर्स चल रहा था, हम लोग का स्टार्टिंग विद अ प्लान लेआउट कि हम लोग प्लान कैसे बनाते हैं उस चीज का. एक अगर एक जो भी कोई फिगर है उसका प्लान कैसे बनाना है, फिर उस प्लान से उसका एलिवेशंस कैसे करते हैं, हम लोग का व्यू कैसा आएगा उसका, वो उससे लेके अब हम लोग 3D तक, 2D 3D भी और मेक, मतलब वी हैव टू मेक, क्योंकि हम लोग का व्यू भी देखने के लिए स्पेस को हम लोग कैसे प्लान आउट कर सकते हैं. फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ ऑन अ पेपर. हम लोग जब फर्स्ट स्टार्ट हुआ था हम लोग का, एक क्यूब का क्या क्या एलिवेशंस हो सकते हैं ना, उसका व्यूज कैसा कैसा हो सकता है, ब्रिक का कैसे ब्रिक लग सकते हैं अलग अलग टाइप में. हम लोग ने ये सब बहुत कुछ चीजें सीखी जो शायद हम लोग अगर इंस्टीट्यूट नहीं करते तो हम लोग को नहीं समझ में आता कि ये सब भी पार्ट होता है चीजों का. मतलब कंप्यूटर को बहुत बाद में हम लोग ने, मतलब सेकेंड ईयर में हम लोग के पास कंप्यूटर में करने का स्टार्ट हुआ था. फर्स्ट तो हम लोग ने सब चीज पेपर में ही, पेंसिल पेपर से बना बना के ही हम लोग फर्स्ट ईयर हम लोग का पूरा प्रोजेक्ट वैसे ही था. सेकेंड ईयर में हम लोग ने सब लैपटॉप्स में 2D डिजाइनिंग, मतलब हम लोग कैड फाइल्स एंड 3D डिजाइनिंग हम लोग का स्टार्ट हुआ था. बट फर्स्ट ईयर में हम लोग पूरा कॉपी पेंसिल पेन एंड द पेपर्स, तो बड़े बड़े बोर्ड्स और स्केल्स ये सब करके यूज, बहुत मजा आता था. लेकिन उसमें जितना मजा उसमें आता था ना, उतना शायद सिस्टम में भी नहीं आता है. बहुत इजी है, लाइन फटफट के लैपटॉप में कर लो, ये कर लो वो कर लो, बट वो जो पेपर का मजा था ना, पेंसिल पेपर का, वो मजा बहुत मिस करते हैं आज के टाइम में भी. आज के टाइम में भी हम लोग को लगता है कि कभी कभी हम लोग वॉल पे, क्योंकि मिस्त्रीज के साथ, लेबर्स के साथ हम लोग जब डील करते ना, तो हम लोग जाके वॉल पे ड्रॉ करके आ जाते कितने में, एंड दे आर ऑल्सो फाइन विद इट. वो लोग को हम लोग भी ड्रॉ कर देते हैं, वो लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होता, वो लोग भी बहुत अच्छे से समझते हैं. What is interior designing as an industry? What an interior designer do? क्योंकि मैं पहले कॉन्सेप्ट बताती हूँ एज अ जनरल कॉन्सेप्ट, जो हम जो इंटीरियर डिजाइनर नहीं है उनको पता है, ठीक है. कि इट हैज चेंज्ड इन दिस 2-3 years, बट उसके पहले कॉन्सेप्ट था कि एनी होम मेकर्स कैन डू इंटीरियर डिजाइनिंग, और बस अगर घर का कुछ शौक है कुछ सजाने का, तो दैट इज इंटीरियर डिजाइनिंग. और आज का जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इंटीरियर डिजाइनिंग मीन्स पूरा एकदम रेनोवेशन टाइप एंड ऑल. सो यू टेल मी व्हाट इज इंटीरियर डिजाइनिंग एज एन. देखो, ये चीज है कि हम लोग बोल सकते हैं कि एन होम मेकर कैन इजिली डिजाइन हर होम, बट एक चीज ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है. बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम लोग फील्ड पे ही जाके सीख सकते हैं. एंड ये सब चीज, एक पूरा कोर्स इसीलिए हुआ क्योंकि उसका बेसिक से सीखना बहुत जरूरी हो जाता है. आज हम लोग अगर अपना बेसिक क्लियर नहीं रखेंगे, कोई भी इंसान बोलेगा यहाँ एक अलमारी खड़ी होनी चाहिए, बट उस अलमारी को कैसे खड़ा करना और किस हिसाब से उस स्पेस को डिजाइन करना, एक डिजाइन, इंटीरियर डिजाइनर का वर्क ही यही है कि वो एक स्पेस को बेटर वे में डिजाइन कर सके. ये एक इंटीरियर डिजाइनर का सबसे बेस्ट पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो एक छोटा से छोटा स्पेस को भी हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. ये एक इंटीरियर डिजाइनर को प्लान करना बहुत जरूरी होता है. मतलब वो बस वो कॉन्सेप्ट गया कि बस थोड़ा शो पीस ले आओ या इधर उधर सजा दो या उसको कैसे सजाना है, दैट इज नहीं, वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली चल गया. देखिए, मेरे को ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है कि जो घर के पीपल होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स भी बहुत सारे ऐसे जने, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो अच्छा लगता है ये पार्ट में. बट वो लोग भी हम लोग से ही सजेशन, ऑब्वियसली आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर, तो वो हमारे से ज्यादा, अगर वो किसी इंटीरियर डिजाइनर को हायर किए हैं तो वो पूरा छोड़ देते हैं. बट उनका भी पूरा वो रहता है पार्ट कि हाँ उनको भी क्या पसंद आ रहा है, उनका भी व्यूज हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्लाइंट को रहना है. आज सबकी पसंद अलग अलग होती है, तो उनको जो पसंद आता है उन पे भी हम लोग प्रेफर करते हैं. कहीं प्रैक्टिकल चीजें जो और अच्छी लगे, मैं ज्यादा इमेजिनेशन करके उनको बता सकती हूँ कि आप जो चूज कर रहे हो शायद उससे ज्यादा अच्छा जो मैं चूज कर रही हूँ. ऐसा बहुत बार होता है कि क्लाइंट्स भी पहले एग्री नहीं करते, बट बाद में जब वो चीज बन जाती है ना, तो दे ऑलवेज प्रेज मी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हियर देम कि हाँ वो लोग ये चीज बोल रहे हैं कि सुनो जो तुमने चूज किया वो बहुत अच्छा लगा.
मतलब ये भी सुन के मुझे सच में बहुत खुशी होती है, क्योंकि शायद कभी कभी ऐसा होता है कि उनसे ऊपर होके मैं ये चीज बोल देती हूँ कि नहीं इससे ज्यादा अच्छा ये लगेगा। तो जब वो चीज मेरे को भी अच्छा लगता है ना कि हाँ उनको अच्छा लगा है, तो उस चीज की खुशी सच में बहुत ज्यादा होती है। So it is very satisfactory for you, right? एग्जैक्टली, वेरी सेटिस्फैक्टरी फॉर मी कि उनको सेटिस्फाई हुआ ना, ये सबसे बड़ा खुशी है। और मेरे को लगता है एक घर को मैं जब भी घर या शोरूम या बैंक्वेट या कुछ भी मतलब एक ऑफिस भी अगर मैं डिजाइन करूँ ना, मेरे को लगता है मैं अपना सोच के कि मैं अगर इस जगह पे हूँ, मैं इस जगह पे मेरे को रहना पड़े या इस जगह पे मेरे को वर्क करना पड़े, तो मेरे को क्या चीज चाहिए ना, वो सबसे पहले मेरे माइंड में आती है। मैं हर चीज डिजाइन इसी पर्सपेक्टिव में करती हूँ कि मैं कैसे उस चीज को लूंगी, मेरे को कैसे वो चीज चाहिए, मेरे को किस तरीका से रहना चाहिए। मतलब अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होगा तो क्लाइंट को भी उस चीज में प्रॉब्लम होगा। So what was the next step after your institution course was done? Then I've joined in internship for 2 months. Then I've joined another firm. I've there for a year. Then I've came the third job, and that was HV Design. 3.5 years I was there. उनके So, साथ मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था, एंड दे नो इट कि आई हैव स्टार्टेड माइन, तो दे आर वेरी कूल विद इट कि यस, दे मतलब दे आर लाइक कि यस आई हैव मतलब ट्रेन्ड यू फॉर दिस ओनली दैट यू विल स्टार्ट योर ओन। hmm. तो आई थिंक तुम्हारा काफी प्लान्ड वे में रहा, राइट? पहले पहले तुमने पहले कोर्स अच्छे से सीखा, फिर तुमने एक्चुअली में लोगों के अंडर सीखा, मतलब यू डिडंट गिव दैट रश कि नहीं मुझे बस अपना अभी शुरू करना है, नहीं राइट? नहीं, मैंने रश बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि आज भी मैं सीख ही रही हूँ। मैं अपने लेबर से भी फर्स्ट, मेरा एक सबसे बड़ा जो मेरा एक फियर था दैट वाज द लेबर्स। मेरे को ऐसा लगता था कि कैसे लेबर लोग के साथ एडजस्ट कर पाएंगे हम साइट पे, या कैसे पूरा टाइम अगर रहना भी पड़े तो विदाउट लाइट्स तो फिर भी रहता है, बट फैंस का प्रोविजन बहुत ही मतलब ना के बराबर ही रहता है। जब ये लोग वर्क कर रहे हैं तो हम लोग फैन ऑन कर ही नहीं सकते। तो तो हम यही सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव था कि कैसे रह पाएंगे लेबर्स लोग के साथ, कैसे डील हो पाएगा। बट आई गेस आज के टाइम में वो लोग मेरे सबसे बड़ा, मेरा टीम मेरा स्ट्रेंथ है। जो मेरा पूरा टीम है दैट आर द लेबर्स, एंड दे आर वेरी मतलब गुड इन देयर वर्क। तो मेरे को लगता है कि हाँ, जो मेरा सबसे बड़ा फियर था दैट इज माई स्ट्रेंथ नाउ, एंड उन लोगों के साथ वर्क करके आई सीरियसली फील वेरी हैप्पी। कुछ ऐसा होता है ना जो मेरे से मतलब काफी बड़े बड़े लेबर्स है, मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स है, एंड कुछ कुछ मेरे को उनसे सीखने जब मिलते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ ये एक नया चीज है, उन्होंने जो बोला वो एकदम सही बोला, एंड आई कैन अप्लाई इन दिस प्रोजेक्ट। ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो वो लोग से भी कुछ सीखने मिलता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हर एक स्टेज, और लाइफ का एक सबसे बड़ा चीज यही है कि सीखना कभी खत्म ही नहीं होता है। सीखने का एक हमेशा कोई स्टेज नहीं है कि आज हम बोल दे कि हाँ मैंने बहुत सीख लिया, वो चीज कभी नहीं हो सकता है। मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होगा। और मेरे को अच्छा लगता है कि मैं बड़ी हो जाऊं, बूढ़ी हो जाऊं, उसके बाद भी सीखते रहना चाहिए, कभी खत्म नहीं हो सीखना। So do you remember your first project? Yes, I do remember my first project. Actually, they were my neighbors. So they have taken a flat near. So they have called and asked कि this will be your first project, but can you do it? I'm like, yeah, I will surely do it. मतलब मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो एक बार तो लगा कि कैसे कर पाऊंगी, बट एक बार लगा अगर ये स्टार्ट मैंने नहीं किया ना, किक मैंने नहीं मारा ना, तो फिर पता नहीं मैं कब। एक देखो, फर्स्ट सामने वाला भी जान रहा है कि आपका एक फर्स्ट प्रोजेक्ट है, एंड ही इज रेडी टू गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी, देन व्हाई शुड आई नॉट टेक दिस यार। तो मैंने ये किया कि हाँ, एक ट्राई मिल रहा है तो लेट्स स्टार्ट। So what will you suggest to anyone जो एक कंपनी फॉर्म कर रही है कि before taking on any project, what are the things that you should be cleared? और तो क्या-क्या चीजें हैं जो कंफर्म होना चाहिए, उसके बाद go look for the projects and clients. The first thing is for the materials and the labors, कि materials I will purchase or you will give and I will do the work. Then the labors part, की labors कैसे होंगे, रेट्स फाइनलाइज हो जाते हैं कि हमारे रेट्स क्या होंगे, मेरे लेबर्स के रेट ये है, मैं पूरा एक उनको एस्टिमेशन दे देती हूँ प्रोजेक्ट का कि ये एस्टिमेशन होगा। देन उसके बाद जब क्लाइंट भी अप्रूव हो जाते हैं, देन विल स्टार्ट द वर्क विद अ प्रॉपर प्लान। पहले तो स्टार्टिंग ही प्लान होता है, क्योंकि प्लान दे के क्या क्या प्रोपोजिशंस उनको भी सही लगता है, हमें मेरा भी पॉइंट, उनका सारा रिक्वायरमेंट्स सबसे फर्स्ट है, उनका रिक्वायरमेंट्स लेना कि उनको क्या क्या दरकार है उनका। Right. उसके ऊपर अगर मैं कुछ सजेस्ट कर सकूं कि हाँ आपका इतना पार्ट में ये भी आ सकता है और चीज ऐड ऑन हो सकती है, उसके साथ हम लोग वो चीज बाद में आएगी, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट जानना मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाए।
कभी कभी कुछ कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बोलते हैं मेरा ऐसा कोई बेस मतलब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका बेड, साइड टेबल, वार्डरोब ये भी मेरे को एक रूम में चाहिए, बस इतना भी हो तो भी आई एम सेटिस्फाइड। तो मेरे को लगता है कि हाँ, अगर मेरे ऊपर भी अगर वो छोड़ रहे हैं तो मैं इस स्पेस में उनको क्या अच्छा से अच्छा दे सकूं, ज्यादा यूटिलाइज उनको क्या दे सकूं, ये मेरा प्रेफरेंस रहता है उनके लिए। तो ना टाइम हो गया तुमको कंपनी खोले हुए, और अब तक कितना प्रोजेक्ट्स कर चुके हो और किस किस टाइप का प्रोजेक्ट्स कर चुके हो? सिल्वर लाइन स्टार्ट हुए हुए अराउंड 3 years हो गया है। टीम ही मेरा कंपनी को चला रहा है, एंड आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन कि पूरे टीम वर्क होने से ये वर्क हो रहा है। मेरे टीम में मेरे लेबर्स है और मैं हूँ। अभी तो मैं सारा चीज कर रही हूँ, एंड मेरे लेबर्स जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो मेरे कारपेंटर्स एंड सिविल पर्सन, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, फॉल सीलिंग पर्सन, एंड जो जो इसमें ज्वाइन होना चाहे, एवरी टाइम खुशी है मेरे को बहुत कि आ जाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो वेंडर्स का को फाइनलाइज रखना, वो सब चीज को सॉर्ट रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वन बिगिंस अ कंपनी। एक्चुअली तो ऐसा भी होता है कि हम लोग को करते करते पता चलता है कि इससे ज्यादा बेटर मेरे को कोई और मिल सकता है, वेंडर भी या लेबर भी। करते करते पता चल रहा है कि अच्छा इससे ये प्लम्बर या ये कारपेंटर से बेटर कारपेंटर, या ये बेटर प्लम्बर या बेटर इलेक्ट्रिशियन या बेटर कोई और हो सकता है। तो टीम बनाने में एक टाइम बहुत लग जाता है, कि एक स्पेसिफिक टीम बनने में टाइम लग जाता है। कि फर्स्ट ईयर तो शायद मेरे को यही चीज का हो गया कि कभी कभी प्रॉब्लम हुआ कुछ या कुछ अच्छा हुआ, तो मेरे को समझ में आता गया कि हाँ, ये टीम बनते बनते में टाइम लगेगा, ठीक है, बनाएंगे और अच्छा कुछ मिलेगा तो और अच्छा कुछ होगा। तो वो सब एक टीम बनाने में थोड़ा टाइम हो जाता है, एंड सेकेंड ईयर तक मेरा टीम वाज टोटली रेडी विद मी कि हाँ, पूरा रेडी हो गया, ये मेरा टीम है, मेरे को ये वेंडर्स को लेने हैं और यही पर्सन को लेने। सो तुम रेसिडेंशियल होम, कमर्शियल स्पेसेस ये सब डिजाइन कर चुके हो? आई हैव डिजाइन्ड commercial banquet and a showroom. I have also designed a saloon even. I've designed a saloon also. Yeah, it's ongoing. When you will get the photos soon on my Instagram page, and I will surely share it with you. सब कुछ तुम संभालती हो, फ्रॉम मार्केटिंग टू क्लाइंट से बात करना, अप्रोच करना? क्लाइंट्स एंड ऑल से बात करना मेरा है, बट मार्केटिंग एंड ऑल मेरा टीम पूरा ही कर लेता है। अगर कुछ भी ऐसा इमरजेंट, मैं भी करती हूँ मार्केटिंग, बट कुछ कुछ ऐसा चीज हो गया जो मैं शायद ऑन स्पॉट उस टाइम पे नहीं पहुंच पाती हूँ और उनको इमरजेंसी होती है, तो दे ऑल्सो कैन परचेज एंड गिव इट टू the site, and I don't have any problem with it. And even the clients, my first preference is to कि client ही material दे और मैं डिजाइन करूँ, और मैं सब मैं इनफैक्ट मैं लेबर्स को भी डायरेक्ट कर देती हूँ कि आप क्लाइंट के साथ डील करो। अगर कुछ डिजाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम होता है, वर्क में कुछ प्रॉब्लम होता है, देन आई एम ऑलवेज देयर, बट रिलेटेड टू मनी एंड रिलेटेड टू एवरीथिंग आई एम रेडी टू गो विद द क्लाइंट्स कि वो लोग आराम से बात करें और आराम से सब चीज करें। इनफैक्ट द मटेरियल्स, आपको जहां लगे कि आपको मटेरियल मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है, then you can surely purchase. What is most important skill to build a company like this or in this industry? Actually communication is very important with the client. आप कैसे मतलब एक अपना माइंड को आपको क्लाइंट के सामने रखना है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। क्योंकि कभी कभी हम लोग क्लाइंट को एक्सप्लेन करते करते कहीं ऐसा ना हो, डर भी लगता है ना इस चीज का कि कहीं मैं कुछ गलत पॉइंट ना एक्सप्लेन कर दूं। तो हर चीज को माइंड में रखना पड़ता है कि कम्युनिकेशन और मेरा मतलब मेरा वोकल्स, मेरा जो वॉइस है, मेरा जो वोकल है, उनको मैं कैसे उनको एक्सप्लेन करूं। मेरे जो माइंड में है, मेरा पूरा ड्रीम है, मैंने सोच लिया कि रूम को मुझे ऐसे पूरा डिजाइन करना है, बट उनको मैं पेपर में भी दिखा दूं। पेपर में जब देख के उनको समझ में आया और उस डिजाइन को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना, उनका बजट को पूरा उस चीज में लेके आना, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। उनको पूरा एक्सप्लेन करना कि हमें कैसे ये इस चीज को रखना है। एंड कम्युनिकेशन हर एक इंडस्ट्री मेरे को लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे जनरल प्रोजेक्ट्स को खत्म होने में कितना टाइम लग जाता है? जनरल प्रोजेक्ट मतलब इट्स अगर आप सोचो कि एक 3 BHK है तो आई गेस मोर देन 6 months, 6 to 8 months में हो जाए। मेन यही हो जाता है ना कि ये जो इंडस्ट्री है इंटीरियर का, उसमें जो एक प्रोजेक्ट है वो बहुत लंबा चलता है, और वो मतलब थ्रू आउट ए वर्क इन प्रोग्रेस फ्रॉम डे वन, जब तक आप हैंड ओवर नहीं कर देते पूरा वर्क इन प्रोग्रेस रहता है।
तो आई थिंक एक ही एक्सपेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, हर एक चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। मेरे क्लाइंट को सेटिस्फाई होना मेरे से ज्यादा जरूरी है। कोई सेटिस्फाई नहीं है तो फिर मेरा सेटिस्फैक्शन होना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनका घर है, वो इन्वेस्ट कर रहा है और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है आजकल इंटीरियर्स में, तो मेरे को लगता है ऐसा फील होता है कि अगर वो खुश है तो मैं खुश हूँ, वो खुश नहीं तो फिर क्या फायदा है ऐसा करके। उनका घर है, वो रहना, वो रहेंगे, मैं तो बनाऊंगी और चली जाऊंगी। फिर उनका सेटिस्फाई, मैं यही सोच के बनाती हूँ कि उनको कोई चीज की प्रॉब्लम ना हो, अपना घर जैसे फील करके ही मैं उनका डिजाइन करती हूँ। क्योंकि लिटरली, सब क्योंकि ऐसा बोला ही जाता है ना, आप जैसे होते हो आपका घर वो रिफ्लेक्ट करता है। एग्जैक्टली एक इंटीरियर्स ग्रो करता है जब एक क्लाइंट ग्रो कर रहा है अपना में, एंड वो हम्म। अपना लग्जरियस लाइफ को कैसे शो कर सकता है ना, तो वो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनको कैसे उनको कैसे और लग्जरियस बनाए। तो उनका घर डिजाइन करने में हमें उतनी खुशी मिलती है। तो एज एन इंटीरियर डिजाइनर, व्हाट इज दैट थिंग जो तुम क्लाइंट से एक्सपेक्ट करती हो कि वो इस चीज में तुम्हारे साथ कोऑपरेट करे? या कुछ अगर उनको नहीं पसंद आए तो वो उस टाइम में अगर बता दे हमें, तो हम उस टाइम भी करेक्ट कर सकते बनती बनती चीजों में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में मतलब पहले बन जाए फिर लास्ट में वो पता चले कि नहीं वो नहीं अच्छा लग रहा है। बट ऐसा रेयरली होता नहीं है, क्योंकि बनते बनते भी क्लाइंट्स कम्युनिकेट करते रहते हैं। बस यही है कि वो कम्युनिकेट करते रहे, कोई भी चीजें अपने मन में ना रखे, जो भी बात है बस बोलते रहे, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ उन्हें ये चीज अच्छी लग रही है। और कुछ कुछ ऐसा हो ही सकता है कि सबकी पसंद एक नहीं होती, सबका कुछ ना हाँ। कुछ पसंद अलग हो ही जाता है। तो अगर उनको कोई चीज नहीं पसंद आ रहा है तो वो कम्युनिकेशन इज द मेन चीज, कि अगर आप कम्युनिकेट करते रहोगे तो हमें भी वो चीज अच्छा लगेगा कि आप हमें बता रहे हैं, और हम लोग फिर उस हिसाब से अंडरस्टैंड करने का, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कोई भी वर्क में। अंडरस्टैंडिंग होती रहे ना, चलती रहे, तो एकदम लाइफ बिंदास है एकदम। तो तुम्हारी तरफ से क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगता है इस कंपनी को खोलने में? इंटीरियर। इन्वेस्टमेंट देखिए क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ है नहीं। देखिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं उसमें हम लोग क्लाइंट से एडवांस लेके ही स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट ऐसे बोल के कुछ पर्टिकुलर होता नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो देखो अब हो ही जाएगा, कि अगर कुछ भी सामान खरीदना हो थोड़ा बहुत है तो वी कैन डू। अगर हम लोग कर सकते हैं तो कर सकते हैं, वो ज्यादा कुछ इतना अमाउंट का रहता नहीं है। और अगर ज्यादा अमाउंट कुछ है तो हम लोग क्लाइंट से ही एडवांस लेके कर लेते हैं। सम परसेंटेज जो भी उनको 10% 50% उस पर्टिकुलर वर्क से अगर रिलेटेड रहते हैं तो वो दे देते हैं। उसके बाद जब वर्क खत्म हो जाएगा तब उनको फुल पेमेंट हो जाएगा। तो फिर वही है कि क्लाइंट के साथ एकदम पाई पाई का जस्टिफिकेशन देना पड़ता है उनको कि और हम लोग हैप्पी है उस चीज में कि हम लोग एक एक बिल्स रखते हैं, कि हम लोग वो बिल्स उनको पूरा दे देते हैं कि ये हमारा बिल है, ये चीज का इनका है और ये चीज इनका हुआ है। तो हम लोग रनिंग बिल्स भी देते रहते हैं बीच बीच में क्लाइंट्स को, कि उनको पता चलता रहे कि उनका अभी तक इतना एक्सपेंसेस हो गया है, और ये इतना इस चीज में इतना इतना एक्सपेंसेस उनका हुआ है। तो वो भी सेटिस्फाई रहते हैं ना कि हाँ मेरा इतना एक्सपेंसेस इस चीज में हो गया। तो उस हिसाब से वो और भी सोचेंगे कि इनको और इसमें इन्वेस्ट करना है, कि और इससे ज्यादा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इस चीज में। तो थोड़ा इनसाइडर वाला बात करते हैं, अंदर की बात जो बोलते हैं कि क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट बताया कि हम ये विजन देख रहे हैं हमारे घर का या जो भी चीज़ है, और आप उस हिसाब से प्लान करते हो और एस्टिमेशन भी उसी हिसाब से देते हो कि जैसा लग रहा है। तो जनरली एट द एंड ऑफ द वर्क या इन बिटवीन, मतलब कितना ओवर बजट एस्टिमेट से चला जाता है जनरली? बहुत जाता है, कम जाता है, कैसे जाता है? कभी भी अंडर एस्टिमेट मतलब जाता ही नहीं है, वो हमेशा ओवर एस्टिमेट ही जाएगा। क्योंकि एक हमारे तरफ से भी और शायद कभी कभी क्लाइंट की तरफ से भी, क्योंकि क्या होता है ना, आज 19 चीजें किसी को नहीं पसंद आती है। देखिए आज अगर हाँ। किसी को लगेगा कि उन 19 चीजें लेके अगर इसमें इतना ही रुपए का फर्क है तो चलो वही वही ले लेते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हम लोग भी सोचते हैं कि ठीक है, अच्छा कोई चीज लगने पे देखिए जितना अच्छा प्रोजेक्ट उनका होगा ना, उतना ही अच्छा हमें भी लगेगा, और हम भी आगे वो दे पाएंगे कि हाँ मैंने ये चीज डिजाइन की है। एक बजट बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि उतना, और वो जितना भी बोल दे क्लाइंट कि मेरा इतना ही बजट है, वो उससे ऊपर होगा ही होगा। कभी कम कम तो जाएगा ही नहीं, ज्यादा भले ही हो जाए, बट कम कभी नहीं होता है। ये तो सोच के लोग चलते हैं कि चलो अभी 15 या 20 बोले हैं तो तुम 20 और ऊपर से मान के चलो कि लग ही जाता है इधर उधर काम करके। बस ये है कि वर्थ होना चाहिए एक एक चीज। एकदम वर्थ होना चाहिए। जब उनको भी ये चीज लगता है ना कि हाँ, कभी कभी क्लाइंट्स ऐसे हो जाता है कि सुनो इसमें इतना खर्चा हो जाएगा, तो एक बार है ना उनका खर्चा हो जाएगा वो आप समझ रहे हो, बट आप ये भी देखो कि उसका वर्थ कितना लगेगा। आज 10 आदमी भी अगर आपको ये चीज आके बोल देगा ना कि ये बहुत सुंदर लग रहा है, आपका पूरा पैसा उस चीज में वसूल हो जाएगा कि हाँ ये चीज सुंदर लगा, और हमको ना कि ये चीज बोल रहे हैं कि हाँ ये चीज सुंदर है।
एक्चुअली ट्रू, वो तो होता है। आज के टाइम पे कोई 2 बीएचके भी लेता है, छोटा-सा घर भी लेता है ना एकदम 1 बीएचके, तो वो भी लोग एक सोशल स्टेटस की तरह लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे 1 बीएचके खड़ा करना भी या लेना भी इज़ नॉट एन ईज़ी जॉब। एग्जैक्टली, इट्स नॉट एन इजी जॉब। एंड अभी जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है उसमें तो मतलब सच में ऐसा लगता है कि लोग, क्योंकि वो जो 4-5 मंथ अभी भी लोग डर रहे हैं इनफैक्ट कि कब ये कोविड वापस आ जाए या बढ़ जाए, कम हो जाए। फिनिश कब होगा ये तो कोई नहीं जानता है, बढ़ कब जाएगा ये किसी को नहीं मालूम। और वो लोग उसके लिए अब लेकिन प्रिपेयर्ड है कि हम लोग बंद हो जाएगा तो ज्यादा एक्सपेंसेस हम लोग को नहीं करना है, ताकि हम लोग उसके टाइम पे भी अपना बचा सके लॉकडाउन के टाइम। लेट्स से कि 1.5 साल 2 साल होने को आया है इस कोविड थिंग को, और तब तक तुम्हारा कहीं न कहीं न्यू ही था, मतलब एक फुल कंप्लीट लॉकडाउन ही समझ लो लास्ट ईयर। दैट टाइम 3-4 मंथ्स जो था ना, मतलब बहुत मुश्किल टाइम था, क्योंकि सारे साइट्स बंद हो चुके थे, सारे लेबर्स अपने घर जा चुके थे। उनको वापस लाना उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि अगर वापस लॉकडाउन हो जाए तो उन्हें वापस वही पैदल चल के घर जाना पड़ सकता है अपने, क्योंकि ट्रेन व्रेन सब ऑल ऑफ अ सडन बंद हो गए थे। एंड मतलब लोगों को इतना मुश्किल हो गया खाना पीने का भी। तो वो लोग यही प्रेफर कर रहे थे कि हम लोग अपने घर चले जाए, और अपने घर से निकलने के लिए वो भी डर रहे थे। हम लोग सभी को ही डर था। आज वो लोग भी यही बोले, अगर जान रहेगा तो ही हम लोग काम भी कर पाएंगे, जान ही नहीं रहेगा तो हम लोग भी कहाँ से काम करें। तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट ऑनगोइंग था उस टाइम पे जब ये कम लॉकडाउन का सीन? हाँ हाँ, मेरा कमर्शियल प्रोजेक्ट। एंड वो प्रोजेक्ट जब मेरा पूरा फैक्ट्री का वो प्रोजेक्ट था, उस टाइम पे लेबर जो मेरे कारपेंटर्स थे वो लोग 1 मंथ वहीं वो लोग रुक गए थे। वो लोग वहां पे काम भी कर रहे थे, बट फिर 1 मंथ बाद क्योंकि मटेरियल्स वो लोग के पास पहुंच नहीं पा रहा था, तो वो लोग भी कैसे, और आमतक एक आउटस्कर्ट पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग को काम करने में भी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि वहाँ खान थोड़ा ना, वो पूरा एकदम फैक्ट्री एरिया ही है, तो वहां पे थोड़ा काम करने में वो लोग को मुश्किलें बहुत ज्यादा हो रही थी। बट फिर भी वो लोग वहां 1 मंथ सर्वाइव कर गए। दैट इज द बेस्ट पार्ट कि वो लोग ने वहां पे जितना उन लोग के पास मटेरियल था वो लोग पूरा यूज वूज करके वो लोग उस काम अपना करके फिर वो लोग अपना निकलने का प्रोविजन किए, थोड़ा पैदल भी चले। उसके बाद जो जो कुछ कुछ मिलता गया, कुछ भी ऐसे वो लोग को बहुत मुश्किल हुआ मिलने में, बट जो भी मिला मिलते मिलते वो लोग कैलकटा वापस आके अपना घर आ गए। दैट इज द बेस्ट पार्ट। कब से तुमको लगा कि अब रिज्यूम कर सकते हैं? चालू हुआ फ्रॉम नवंबर एक्चुअली। उसके पहले तक ना नोबडी इज रेडी, क्योंकि वो लोग को यही डर था कि अगर हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपना प्रोजेक्ट में तो वापस रुक जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा, फिर वो इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। और लॉकडाउन के टाइम में ऐसा सिचुएशन था कि जो भी, चाहे वो टाटा अंबानी शायद क्यों ना, वो लोग सबको ही अपना कहीं ना कहीं सेविंग्स को यूज किए ही हैं, सबकी सेविंग्स यूज। तो मेरे को ऐसा फील होता है कि सबको एक बार डर गए थे कि अपना इन्वेस्टमेंट को सेफ इस टाइम लॉकडाउन के लिए रख के रखे कि लगा दे। तो सब एक बार थोड़ा डर ही गए थे, बट फिर भी ऑन ट्रैक आते आते नवंबर हो ही गया। नवंबर दिसंबर से वापस हम लोग ने काम चालू किया पूरा फुल में एकदम वापस। अभी तक तो मतलब ये मई में भी काम नहीं रुका था, मई में भी वर्क हो ही रहा था। ये चीज चलो, तो मुझे बहुत मई में अच्छा चीज़ रहा है कि मतलब यू सर्वाइव्ड और ऑनगोइंग रहा प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट भी उतने सपोर्टिव रहे कि नहीं तुम करो काम। सपोर्टिव थे। ये चीज के लिए मैं हमेशा बोलूंगी कि क्लाइंट्स एकदम घर के जैसे मुझे ट्रीट किए हैं, वो लोग हमेशा मुझे ब्लेस किए हैं। और मैं चाहती हूँ कि उन लोग की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे ऊपर रहे, क्योंकि उन लोग ने मेरे को एकदम मतलब घर की बेटी जैसे ही हमेशा, मेरे सारे क्लाइंट्स ने मुझे ऐसे ही ट्रीट किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका बिहेवियर। उन्होंने मेरे को सब हमेशा बहुत अच्छे से ट्रीट करके किया। तो कोविड में भी मेरे को फील नहीं हुआ कि नहीं कोविड इज अ सिचुएशन में प्रॉब्लम होना चाहिए, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आया। So you are taking that all the precautions of the mask and the sanitization process. एवरीथिंग, मास्क भी, फिर जितना भी मास्क ये सब पहनो, सैनिटाइजर्स यूज करो। मतलब लेबर्स भी, वो लोग भी बेचारे काम करते करते, उनको भी मैं कैसे ही एक्सप्लेन करूं कि मैं बोल भी नहीं पाती थी उनको कि आप इतने गर्मी में काम करते करते मास्क पहनो, नहीं, क्योंकि वो लोग भी थक जाते हैं यार, मास्क उन लोग से काम नहीं था। मेरे को ही कोई बोल दे कि मैं एकदम गर्मी में मास्क पहन के काम करूं तो वो चीज पॉसिबल भी। वो लोग उठते थे, जब वो लोग क्लाइंट के सामने आते वो लोग अपना मास्क पहन लेते थे, मेरे सामने आते तो वो लोग अपना मास्क पहन लेते थे। जितना वो लोग अपने आप से कोशिश कर सकते थे वो लोग उतना करते थे। जितना इतनी गर्मी में नहीं हो पाता था तो मैं भी उनको फोर्स नहीं कर पाती थी। सैनिटाइजर्स यूज करना, हैंड वॉश करना, वो सब वो लोग प्रिकॉशंस लिए, सारा चीज। वो लोग घर जाते थे वो लोग अपना मास्क पहनते थे, बस वर्क के टाइम पे वो लोग मास्क एंड ऑल नहीं पहन सकते थे। तो मैंने भी उनको फोर्स नहीं किया, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे को भी लगता है कि ठीक है, अगर वो ठीक है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना मास्क उतार के काम कर सकते।
क्योंकि बहुत गर्मी हो जाती है यार, मतलब साइड पे पंखा ये सब नहीं यूज करो ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है इतने गर्मी में काम करना, बहुत ज्यादा। तो एज अ ओनर तुम्हारा क्या टेक अवे रहा था ड्यूरिंग दिस सडन पैंडेमिक, सडन क्लोजिंग ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट? सडन ही था सब कुछ, कोई प्लान नहीं था? एकदम भी बहुत ही ज्यादा सडन था। लोग अपने जस्ट सबको लग ही रहा था क्योंकि बाहर फॉरेन में तो सब जगह लॉकडाउन स्टार्ट हो ही गए थे, बट यहाँ का इतना सडनली किसी को श्योर नहीं था। जब पीएम मोदी ने अनाउंस किया था तब भी उनके हाथ में 2 दिन था, फिर भी काफी जिन लोग जा सकते थे, जो आसपास के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं वेस्ट बंगाल के, वो लोग लेबर्स लोग अपने घर जा चुके थे। तो वो मेरे को लगा ठीक है, उस टाइम लगा था कि 15 डेज 1 मंथ में सब ठीक हो जाएगा एंड एवरीबडी विल कम अगेन। बट जैसे जैसे आगे बढ़ता गया लॉकडाउन, और तो लगा कि यार ये तो बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगा, लेबर्स लोग के लिए भी एक टाइम पे मुश्किल हो गया था कि सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ये चीज था कि जितना हम लोग अपना हिसाब से कर सकते थे हम लोग ने हेल्प करने का कोशिश किया, बट यही था कि काम बंद होने का बहुत डिसएडवांटेज भी हुआ, बहुत ज्यादा ही। बस ये था कि उनको सरवाइव करने के लिए करना जरूरी था, इसलिए हम लोग ने किया, नहीं तो। और ये होता था कि अगर किसी को भी फीवर आ जाता था तो हम लोग उसको अच्छे से ले जाते थे, मतलब वो अपने घर चला जाता था जिसका भी प्रॉब्लम होता था, या अगर पहले से ये तो वो आए नहीं साइट पे। ये सारे मतलब मेरा टीम ने ये चीज किया कि वो किसी का भी तबीयत खराब रहता तो वो लोग या तो आते नहीं थे, और अगर बाई चांस कोई किसी को आने के बाद भी होता था तो वो फौरन घर चला जाए। ये चीज एकदम मतलब मैंने बोल के रखा था, क्योंकि एक को भी होने से दूसरे को भी तुरंत हो जाएगा, और लोग सब साथ में बैठते हैं, इन लोग का भी टीम रहता है एक, तो इससे बेटर अपना घर चला जाए, मेरे को कोई इशू नहीं रहता था उस चीज। तो जितना मैं देख रही हूँ इन दिस इंडस्ट्री का, मतलब इतने साल में, कि फ्रॉम द थॉट कि नहीं यार इंटीरियर डिजाइनर को बस ऊपर ऊपर का सामान के लिए या थोड़े बहुत चीजों के लिए हायर करते हैं, टू नाउ कि मतलब एक एक मतलब मतलब पूरा इंटीरियर बनाया जाता है, इतना वास्ट या, चेंज रहा है। तो एक रग भी खरीदना है तो एज ए इंटीरियर डिजाइनर भी पूछ सकते हो कि हाँ ये रग भी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, कौन सा रग ले हम लोग। हाँ, तो सडनली इतना चेंज हो गया है इंटीरियर डिजाइनर का डिमांड, कॉन्सेप्ट, कि क्या वैल्यू है इनका, राइट? व्हाट चेंज डिड यू सी फ्रॉम द टाइम यू बिगैन, या फिर वो क्या चीजें हैं जो उस टाइम पे तुम सुनती थी? तुम ऑब्वियसली जब बिगिन कर रही होगी बोल रही होगी कि मैं इंटीरियर डिजाइनर कर रही हूँ या ये कोर्स का पढ़ाई कर रही हूँ, तो एनी वियर्ड कमेंट्स और डिड यू हियर, या फिर आज वो थॉट चेंज हो गया है, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा थोड़ा सा था प्रॉब्लम्स उस टाइम। मैंने जो फर्स्ट मैंने पहले भी शेयर किया है कि एक गर्ल का एक लेबर्स के साथ डील करना, वो चीज में मेरे को लगा कि एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट मेरा आने वाला है। पर उस टाइम हम सुनते थे, प्लस दूसरा चीज ये रहता था कि कैसे डील करेंगे क्लाइंट्स के साथ, कैसे डील करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ मैं उस टाइम सुनती थी कि आप खाली प्लान बता दो फिर डिजाइनिंग हम लोग अपने आप ही या कर लेंगे, या ऊपर ऊपर का खाली बता दो डिजाइन कैसे करना है, बाकी सब मेरा कारपेंटर लेबर्स कर लेगा। ये सब मेरे को लगता था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स आएगा, और ऐसा मैं सुनती भी थी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम इंटीरियर डिजाइनिंग जब मैं कोर्स चालू करने वाली थी ना, तब इतना वास्ट लोगों का नहीं था। लोगों का थिंकिंग ये भी था कहीं ना कहीं कि डिजाइनिंग में तो ज्यादा क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, खाली हैंड स्केच है, ड्रॉ है, और लेबर को खाली बोला लेबर तो सारा काम कर देगा। बट ये प्रोसेस आज के टाइम में लोगों का बहुत चेंज हो गया कि खाली लेबर्स काम, मतलब लेबर्स भी अपना दिमाग लगा के करते हैं, लेकिन एज अ इंटीरियर डिजाइनर वो लेबर्स को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि ऐसे नहीं, स्पेस को हम लोग और अच्छे से ऐसे डिजाइन करके कर सकते, एक ग्लास भी कैसे डिजाइन करके रखना है ना एक टेबल पे, वो भी मतलब एक बोलते हैं ना एक आर्ट होता है, डिजाइनिंग इज एन आर्ट, एग्जैक्टली इट्स एन आर्ट। ये हर कोई नहीं कर सकता है, जिसका जो प्रोफेशन है वो उसी प्रोफेशन में अपना काम कर सकता है, तो इट्स एन आर्ट, एवरीबडी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आगे भी अगर किसी का नहीं ये चीज समझ में आ रही तो आई गेस वो आ जाएगी, थोड़े टाइम बाद लोगों को ये बात एकदम समझ में आ जाएगी कि ये एक आर्ट है और सबका काम सबको ही खुद ही वो करे तो वो अच्छा लगता है। सिस्टर्स भी प्लीज, वो लोग भी बहुत सपोर्टिव है, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली। बहुत सपोर्टिव है, बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी लड़की के लिए टू हैव दिस काइंड ऑफ अ सपोर्ट, यू नो, हैव द बैक, बिकॉज लाइक यू सेड कि कमेंट करने वाले बहुत लोग होंगे कि लेबर्स के साथ काम करती है, ये करती है, वो करती है, लेट नाइट्स हो जाते होंगे कभी कभी, टाइमिंग टाइमिंग का फ्लेक्सिबिलिटी है इतना।
ऐसा होता है कि आई केम होम एट 11 और आफ्टर 11, बट दे आर एक्चुअली वेरी सपोर्टिव। कभी कभी लेट हो जाता है तो पापा कॉल कर लेते हैं। माय ग्रैंडमदर इज वेरी कूल, शी इज ऑल्सो वेरी नाइस। वो भी मेरे को कॉल कर लेती है कि बेटा इतना लेट हो गया, हम बोले हाँ आ रहे हैं। तो वो भी समझती है कि मेरा काम है, मुझे करना है। तो मतलब शी ऑलवेज कॉल मी एंड आस्क मी कि टाइमली घर आ जाना, खा लेना एंड एवरीथिंग। मतलब एवरी टाइम शी, मतलब वो इतना एज में भी वो मेरे को कॉल करके मेरा बहुत ध्यान रखती है। तो मतलब एक फैमिली का सपोर्ट होना ना बहुत बहुत जरूरी है, एंड बहुत ज्यादा मुझे मिला है सपोर्ट अपना फैमिली से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज से कि मुझे अपना फैमिली का, मेरे बड़े पापा भी बहुत सपोर्टिव है। मतलब हर चीज में आगे बढ़ो बेटा, आगे करना चाहिए, अच्छे से करो। तो So what will you tell the parents, other parents जो एक्चुअल में इतना मतलब भले मे बी दे हैव दैट फ्रीडम इन माइंड बट उनको इन इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है। मे बी उनकी जो किड है, बेटी है, वो फर्स्ट होगी इनके जनरेशन में या फैमिली में जो इस फील्ड में जा रही है या फिर मे बी बिजनेस कर रही है। इंटीरियर डिजाइनर नॉर्मली इज देयर, दूर दूर भी कोई रिलेटिव नहीं है जो इंटीरियर डिजाइनर हो। बट ये चीज है, मैं उन सबको ये चीज बोलूंगी कि आप एकदम भी ये चीज मत सोचिए कि एक लड़की होके वो ये चीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी। उसको अगर वो हिम्मत रखे और वो अपना स्ट्रेंथ रखे ना, अपने आप को स्ट्रांग रखे ना, तो वो एकदम इस चीज, इस फील्ड में एकदम आगे बढ़ पाएगी। और उसे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज मेरे को नहीं लगता है कि उसे रोकने के लिए वैलिड होगा। कि वो आप कोई भी फील्ड में जाइए, कोई ना कोई ऐसा चीज, वो फील्ड से रिलेटेड नहीं होता है, वो किसी के साथ होना रहता है तो वो चीज हो जाता है। बट आपको ये हिम्मत रखना होगा कि आपकी बेटी स्ट्रांग है तो उसको अपना स्ट्रांग रहना पड़ेगा, उसको अपना स्ट्रांग में स्ट्रेंथ रखना होगा और आगे बढ़ना होगा। सही बात है। जब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ट्रांसपेरेंट रहेंगे तो बच्चे भी उतना ट्रांसपेरेंट रहेंगे आपके साथ। वो चीजें ही नहीं आएंगी कि आपको कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता। हाँ, एकदम नहीं, एकदम भी नहीं। आपको हम जैसे सारा बात शेयर करते हैं, मेरे लेबर्स तो मेरे घर भी आते हैं, कुछ भी पूछना, कुछ भी करना, पेमेंट लेना है, कुछ भी है, मैं अपने एकदम घर बुलाती हूँ। मेरे मतलब मेरे सारे लेबर्स है वो मेरे पूरे फैमिली से मिल चुके हैं एकदम अच्छे से, क्योंकि कितने बार ऐसा होता है कि कुछ बात बात करना रहता है तो मैं घर पे रहती हूँ तो कभी घर पे बुला लेती हूँ। तो इट्स फाइन विथ एवरीथिंग। और मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी बहुत क्लियर हूँ कि मेरा ये वर्क है। मैं अपने पापा के साथ पूरा अपना वर्क शेड्यूल शेयर कर लेती हूँ कि आज मेरा यहाँ वर्क है, मैं यहाँ जाने वाली हूँ, ये आने वाला है। एंड पापा इज ऑल्सो फाइन कि हाँ ये चीज होने होगा, ये आज उसको लेट हो जाएगा तो इट्स फाइन, लेट होगा, जल्दी जाना है। मतलब जब मैं ऑफिस के साथ, जब मैं अपना वर्क स्टार्ट की थी तो मैं मॉर्निंग 7 o'clock साइट पे भी पहुंच जाती थी। तो हम्म। पापा के साथ पूरे एकदम ट्रांसपेरेंट थी कि, और मेरे लेबर्स भी इतने सपोर्टिव मेरे को मिले कि वो लोग भी मॉर्निंग 7 o'clock पहुंच जाते थे। कहीं आउट ऑफ आउटस्कर्ट्स भी अगर वो लोग रहते थे ना तो वो लोग फिर भी पहुंच जाते थे। एंड ये बहुत मेरे को अच्छा लगा था उनका कि मैं, मेरे को अगर जल्दी काम रहते तो वो लोग भी जल्दी आ जाते हैं मेरे लिए। कभी ऑफिस से लेट पहुंच पहुंच रही हूँ साइड तो वो लोग भी लेट तक रुक जाते थे मेरे लिए कि हाँ अगर दीदी आ रहे तो फिर रुक जाते। तो मेरे को वो चीज का सपोर्ट एक्चुअली बहुत मिला कि वो लोग मेरे अकॉर्डिंगली भी हो जाते, मतलब आ जाना, आना जाना जैसे भी रहता था वो लोग कर लेते। हाँ खुद नहीं क्योंकि भी आप किसी आदमी को भेज देते थे कि वो दीदी से समझ लेगा काम का जो भी रहेगा। तो ये हम्म। कोऑपरेशन बहुत जरूरी था। तो ये मेरे को मिला एंड बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये कोऑपरेशन, मतलब बोलते हैं ना भगवान का एक चीज होना कि इस कोऑपरेशन में मेरा हेल्प किया भगवान, एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्प किया। So you pray like you believe in God and I believe in God totally, I totally believe in God. Without him I don't think so कि लाइफ में कुछ भी रहता है। I totally believe in God. तो मेरे को सच में बहुत उनका रहेगा तो मेरे को लगता है कि इंसान कहीं से कहीं कहीं भी पहुंच सकता तो कोई भी बिजनेस ओनर होता है उनके लिए तो वैसे भी टाइम का कोई फिक्स्ड होता नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इज द फर्स्ट थिंग दैट एक ओनर शुड अंडरस्टैंड। और इस सर्विस इंडस्ट्री में तो और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे आपने कहा अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट्स। तो देयर इज नो फिक्स थिंग कि मैं सुबह ही जाऊंगी और इसी टाइम पे आना है, इसी टाइम पे जाना है। लोकेशन श्योरिटी नहीं है कि एक ही जगह ऑफिस है वहीं आना जाना है। है। कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, ऑफिस कहीं और है, घर कहीं और है, प्लस साइट्स तो मतलब कहीं पे भी मिल जाए, मतलब आउट ऑफ कैलकटा भी हो तो आई एम, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ है तो मेरे को ट्रैवल करना है, मैं कर लूंगी, मेरे को कोई इशू नहीं है उस चीज में। इस चीज का यही तो सबसे बेस्ट पार्ट है ना कि आपको वहां मतलब पूरा वर्ल्ड भी घूमना पड़े ना तो उसमें भी मजा है। उसको क्रिएट कैसे करना है वो भी एक मजा है।
बहुत मजा आता है उसमें भी, अलग अलग जगह घूमो, 4 चीजें देखो, बहुत ज्यादा मजा आता है। इसमें को कभी इन फ्यूचर मेरे को लगता है कि मेरे को सब्जी वब्जी खरीदने में भी उतना मजा नहीं आएगा जितना कोई टाइल्स वाइल्स खरीदो, कोई मार्बल खरीदो, कोई लैमिनेट देखने जाओ, कोई वीनियर देखने जाओ, कोई हैंडल पसंद करो, उसमें भी आता होगा। पता नहीं, मुझे लगता है ना कि यही एक मेरा लाइफ का पार्ट है, एंड यही मेरा एक, बोलते हैं ना एक बच्चे लोग का टॉयज होता है, ये सब मेरे लिए टॉयज है जिसके साथ मैं खेलती हूँ। एंड मेरे को सबसे अच्छा चीज लगता है कि मैं इन लोग के साथ, मतलब ये सब के साथ मजा आता है ना जब कलर्स मैच होते हैं, ये सब प्रॉपर चीजें अपने अपने जगह हो जाती है ना, एक लाइट का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हर एक एक चीज का एक एक वैल्यू है, कोई बोलता है ना पेंट का वैल्यू है, लाइट का वैल्यू है, नहीं, हर एक एक एलिमेंट का वैल्यू। डिजाइनिंग इज टोटली एन एलिमेंट जो सिंप्लिसिटी में हो और एक अच्छा लगे, बस खूबसूरत चीजें, उस चीज को और खूबसूरत कैसे करना है वो चीज करो। तो सिर्फ ये नहीं है कि महँगी-महँगी चीज़ें लगाओ, महँगा-महँगा शोपीस या प्रीमियम जैसा चीज़ लगाओ टू शोकेस इट। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो चीज सुंदर लगे उस पोजीशन के लिए, वो अपने आप ही उस चीज को हाईलाइट कर देती है, चाहे वो सस्ता हो चाहे वो महंगा हो, इट डजंट मैटर, एकदम भी मैटर नहीं करता। और बहुत लोग का ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है एनीवन इट कैन बी कि इंटीरियर डिजाइनर्स रिच पीपल हायर करते हैं या अगर इंटीरियर डिजाइनर को हायर कर लो तो एक्सपेंसिव हो जाते हैं चीजें या इफ वी हैव समथिंग इन आवर गुड अमाउंट इन आवर पॉकेट देन ओनली वी शुड हायर इंटीरियर डिजाइनर और कि बड़ा घर हो गया या 3 BHK टाइप ऐसा हो गया देन ओनली वी शुड हायर इंटीरियर डिजाइन। तो इसमें तुम क्या बोलोगे? पॉइंट में बोलना एक्चुअली यही है कि ऐसा नहीं है कि इंटीरियर डिजाइनर हायर करने से आपका पैसा ज्यादा लगता है। मिसकंसेप्शन है लोगों का कि अगर एक इंटीरियर डिजाइनर कर रहे हैं तो उसका, वो डिजाइनर जो है वो अपने काम का पैसा एक्स्ट्रा ले रहा है। ये ऐसा चीज नहीं है। आज आप एक नॉर्मल लेबर से बनवाओ और एक आप एक इंटीरियर डिजाइनर के साथ करवाओ, उसमें बहुत फर्क आएगा। आज आपका उस स्पेस में और क्या क्या यूटिलाइज हो सकता है, उस पोजीशन में और आपको क्या एड ऑन हम लोग कर सकते हैं, उस माइंड का वैल्यू जो है ना, वो हम लोग एज अ इंटीरियर डिजाइनर एज अ मनी लेते हैं। और वो कुछ भी नहीं है, उसको यूटिलाइज हम लोग और कैसे अच्छे से कर सकते हैं, हम लोग और कैसे उस चीज को और सुंदर बना सकते हैं, हम लोग सिर्फ वही काम करते हैं। और हम लोग, ठीक है, कोई कोई लेबर्स भी बहुत स्मार्ट होता है, आई एम नॉट सेइंग कि इंटीरियर डिजाइनर ही बहुत स्मार्ट होते हैं, कोई कोई लेबर्स भी बहुत स्मार्ट होते हैं, बट ये एक कंसेप्शन रखना कि इंटीरियर डिजाइनर से हमारा बजट इंक्रीज हो जाता है, हमारा मनी ज्यादा लग जाता है, ये चीज एकदम गलत है। क्योंकि आज वो उस चीज का ही पैसा ले रहा है जो वो उस चीज का काम कर रहा है। लोग सोचते हैं कि डिजाइनिंग करने में क्या पैसा, अरे डिजाइनिंग करने में पैसा भी तो लगता है ना, इंसान अपना एफर्ट दे रहा है, आपको अपना एफर्ट बता रहा है कि इसमें अगर आप ऐसे करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है कि वो लोग कोई और चीज का नहीं, अपना माइंड का ही, आज जो हम लोग सीख रहे हैं, जो हम लोग किए हैं और जो हम लोग कर रहे हैं, आपको अपना थॉट बता रहे हैं, दैट इज द मनी। हमारे थॉट्स ही हमारा पैसा है और कुछ नहीं। हमारा जो माइंड में जो हम लोग क्रिएट करते हैं, डिजाइन हम लोग करते हैं, वही हमारा पैसा, वही हमारा आर्ट है, तो उसी से हम अर्न करते हैं, तो वही हमारा मनी। So even a 1 BHK person or even a like a middle class person or even who are just starting out like अभी social status upbring होना start हो रहा है, they all can hire an interior designer within their cost. Everybody should hire an interior design, क्योंकि आपका शायद 1 BHK में आप सोच नहीं सकते हो हम लोग क्या क्या और बना सकते हैं। आप सोचोगे वो सिर्फ 1 BHK, बट हम लोग सोचेंगे कि नहीं, उसमें उनका यूटिलाइजेशन क्या क्या चीज का है, हम लोग उसको और एनहांस कर सकते हैं, आप और ज्यादा हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं जो आपका नीड है। ओके, सो अब मैं एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर तुमसे बात करूंगी कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनका ऑफिस होता है, ऑफिस में जाके काम करते हैं, एक फिक्स प्लेस होता है या मीटिंग्स के लिए कहीं पर आना जाना। तुम्हारा पूरा सर्विस है, यू हैव टू गो टू सो मेनी प्लेसेस, यू हैव टू डील विद सो मेनी लेबरर्स, वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब वैसा है। सो एज अ वुमेन और एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशंस डू यू टेक और डू यू सजेस्ट कि जो स्टार्ट आउट कर रही हैं उनको क्या लेना चाहिए? आई मीन देखो ट्रस्ट तो है कि जो ट्रस्टवर्दी पर्सन को आप रख रहे हो या बट स्टिल एक रखना ही पड़ता है। सो व्हाट आर योर प्रिकॉशंस इन दैट एरिया? किसी का कुछ हम लोग बोल नहीं सकते कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है। अगर आपको अच्छी वाइब्स किसी से नहीं आ रही है तो आपको खुद ही उस चीज से मतलब बैकआउट कर लेना चाहिए। मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर मेरे को वाइब्स अच्छी नहीं आ रही ना कहीं से, तो मैं वो खुद ही बैकआउट कर जाती हूँ। और वो चीज होना मेरे को लगता है कि गलत चीज नहीं है। अगर मेरे को कोई गलत वाइब्स आ रही है तो वो आ रही है, मैं उस चीज को क्यों वेट नहीं कर पाती हूँ कि मैं उस चीज का ठीक है बाद में देखेंगे,
अगर कुछ गलत लगेगा तो सोचेंगे, मैं उस चीज का वेट नहीं करती। मेरे को अगर 10% भी मेरे को गलत वाइब्स आने लगती ना, एक वुमेन होने के नाते मेरे को लगता है कि हर एक वुमेन को समझ में आने लगता है कि वो वाइब्स कैसी आ रही है, एक नजर से समझ में आता है कि कैसा नजर है सामने वाला का। तो अगर वहीं से एक स्टेप भी मेरे को लगता है ना, तो मैं 10 स्टेप बैक हो जाती हूँ कि भाई नहीं हो सकता, काम And नहीं हो सकता। you shouldn't feel guilty about it. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। एज अ बिजनेस वुमन आई डोंट फील, क्योंकि ये मेरा एक राइट्स है कि मैं अपने आप को स्टैंड रखूं उस चीज में। हाँ, एक पॉइंट में शायद मेरे को कभी कभी ये फील होता है कि मेरे को आगे खुद बढ़ना चाहिए था उस चीज को लेके, मैं नहीं सोचती, बट मैं क्या करती हूँ, उस इंसान से बैकआउट हो जाती हूँ, मैं अपने वर्क से बैकआउट नहीं करती हूँ। मेरा जो काम है मैं उसमें आगे बढ़ूंगी, ऑब्वियसली मुझे बढ़ना है एज अ वुमन, लेकिन मैं अपना उस इंसान से मैं बैकआउट हो जाती हूँ कि नहीं, इस इंसान के साथ नहीं हो सकता। तो इट्स फाइन। मेरे को लगता है हर एक वुमेन को ये चीज अपना स्ट्रेंथ, अगर उसका सिक्स सेंस अगर उसको ये चीज दे रहा है ना कि मेरा इससे वाइब्स नहीं अच्छी आ रही है, तो उस इंसान से बैकआउट हो जाओ और अपना काम पे बैकआउट मत होना, बस अपने काम पे फोकस। तो मतलब एज वुमेन मैं भी ये बोलूंगी कि इंस्टिंक्ट्स जो आ रहे हैं तुम्हें किसी भी इंसान के लिए आ रहे हैं, वो करेक्ट आ रहे हैं। अगर आ रहा है, मे बी वो इंसान गलत नहीं है, बट हो सकता है माहौल या वो सिचुएशन या वो टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन या कुछ भी है, getting an instinct that it is not, or you are even slight uncomfortable, then just back off, there's no harm. पर किसी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए ना, मतलब किसी भी फील्ड में हो, स्पेशली इन दिस सर्विस इंडस्ट्री, बट किसी भी फील्ड में हो, घूम फिर के बात ना सेफ्टी पे ही आ जाती है। डू यू बिलीव दैट? हाँ, आई डू एकदम घूम आई फिर डू। के जो भी रुकावट आता है वो सेफ्टी पे आ जाता है कि क्या हो जाता है कि रात लेट हो गया है, अभी तो कोविड की वजह से ज्यादा लेट नाइट भी बहुत सुना हो जाता है रास्ते, तो ध्यान रखो ये सब चीजों का। तो अब ये सेफ्टी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक वुमेन के लिए, और इसमें हमको लगता है एक वुमेन को बंद रह के लेकिन रखना इट्स अ रॉन्ग थिंग। हर एक वुमेन को अपना खुद से सेफ्टी, खुद को स्ट्रांग बनाना होगा कि इस चीज से हम लोग बैकआउट नहीं हो सकते, एंड वी हैव टू डील विद इट। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ रखनी होगी उस चीज में कि कैसे भी हम लोग तो उस चीज से क्या डील करें, और कैसे सिचुएशन सारे डिफरेंट होते हैं, बस अपने आप में स्ट्रांग रहना और उस चीज से डील कर लेना, करेक्ट। यही सब। हैव एनीथिंग एल्स टू से अपने तरफ से कि इस फील्ड के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में? या ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा है और बहुत ही मतलब चैलेंजिंग है। हर एक डे हम लोग का माइंड में एक नया आता है कि अरे ये चीज तो पुराना हो गया। हर एक साल में कुछ चीजें पुरानी, जैसे हमारे यहाँ पे हर 6 महीना में चीज पुरानी हो जाती है। अरे ये तो इनके यहाँ इतना देख के, अरे ये तो इनके यहाँ इतना देख के, हम लोग खुद को जाते हैं चीजों से। तो हम लोग एवरी डे चैलेंजिंग है कि हम लोग एवरी डे क्या नया कर सकते हैं, हम लोग उस चीज को और कैसे सुंदर बना सकते हैं। एवरी डे हम लोग को एक नए थॉट, एवरी डे एक नए डिजाइन के साथ हम लोग को रेडी रहना पड़ता है कि हाँ आज ये चीज अगर है तो मेरे को इसमें क्या और हम नया कर सकते हैं और क्या खूबसूरत उसको और बना सकते हैं। तो एवरी डे इज अ चैलेंज, एवरी डे इज एन आर्टिस्ट डे आई कैन से। तो एवरी डे बहुत सुंदर है, कोई भी चीज मोनोटोनस नहीं है। मैं कभी भी इस फील्ड का लाइफ कभी भी ना मोनोटोनस नहीं हो सकता है, क्योंकि एवरी डे कुछ नया रहता है, एवरी डे कुछ नए बात नई चीजों पे होता है। तो मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, मेरा टीम के साथ ऐसा है ना कि अंदर का तो वो लोग आजकल खुद ही बना लेते हैं, क्योंकि अंदर से तो जो जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट का रहता है या जैसे भी बनाना है वो स्ट्रक्चर वो ही बनता है। बाहर का चीजों पे माथा क्रिएशन क्रिएटिविटी सब हो जाता है। तो डिजाइनिंग हर दिन क्या नया करना है ये सोच के माथा में घर से निकलती हूँ, और फिर वापस बैक टू पेविलियन टू माय होम कि आज तो ये खत्म हो गया, अब कल नेक्स्ट डे क्या नया करना है ये सोच। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग थिंग। देखो मैं भी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने, तुम थोड़ा बहुत पोस्ट डालती हो बट यू आर नॉट हार्डकोर इनटू सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैं खुद से नहीं डालती हूँ, मेरे फ्रेंड्स और मेरे फैमिली मेरे को फोर्स करते हैं कि तुम अपना कुछ भी सोशल मीडिया में नहीं डालती हो, तुमको डालना चाहिए। तब मैं जाके उसको डालती हूँ। जिस दिन वो लोग मेरे को फोर्स करते हैं उस दिन रात में मुझे याद आता है कि अच्छा ठीक है अभी रात में डाल देते हैं, अभी फ्री हूँ तो अभी डाल दो। नहीं तो एक तो मैं बहुत ही गंदी फोटोग्राफर हूँ, मतलब आई डोंट नो हाउ टू टेक अ पिक्चर, मैं बहुत ही गंदी फोटोग्राफर हूँ। तो एक वो हो जाता है, प्लस दूसरा चीज मैं
मुझे मतलब लगता नहीं, मैं याद ही नहीं रखती हूँ कि अच्छा मुझे सोशल मीडिया में भी कुछ डालना होता है। मेरे फ्रेंड्स मेरे को फोर्स करते हैं कि तुम डालती क्यों नहीं हो। मतलब मेरा इंस्टाग्राम एक्चुअली मेरी बेस्ट फ्रेंड यूज करके वो पोस्ट डाल रही है, मैं यूज नहीं कर रही हूँ अपना सिल्वर लाइन। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरा यूज करती है क्योंकि वो डालती है, वो मेरे को एकदम पोक कर करके वो मेरे को करी तुम क्यों नहीं अपना सोशल मीडिया हैंडल करती हूँ, क्योंकि अभी लास्ट 3-4 मंथ से वो ही मेरा ऑपरेट कर रही है। एंड कुछ भी मैसेजेस मैं भी ऑपरेट करती हूँ, बट मैं सिर्फ मैसेजेस में ऑपरेट करती हूँ। किसी का कुछ मैसेजेस इंक्वायरी ये सब आई भी रहती है तो मैं उसमें क्वेश्चन करती हूँ, आंसर करती हूँ, तो वो चीज रहता है। बाकी चीजें सब वो ही हैंडल करती है। वो मुझसे पिक्चर्स लेती रहती है साइट का, वो मुझे फोर्स करती है कि प्लीज तुम पिक्चर्स लो अपने साइट का और प्लीज अपना प्रमोशन करो, नहीं करोगी तो कहाँ से वर्क आएगा। नॉर्मल अरे काम देख के आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मेरे को लगता है सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, तो होना ही चाहिए, लोगों को पता चलना ही चाहिए थ्रू सोशल मीडिया। और लॉकडाउन के बाद तो स्पेशली सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हाइप में है, तो मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया में जाना ही चाहिए चीजें। मैं जितनी मतलब पहले इतनी सोशल मीडिया में नहीं मतलब वो करती थी, बट अब मेरे को खुद को ये चीज बिलीव होता है कि सोशल मीडिया पे बहुत बहुत पावरफुल और बहुत पावर है उनके पास कि वो किसी को भी यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हैं। तो आई बिलीव इन दिस। तो बट अभी तक बेसिकली तुम्हारा सारा काम वर्ड ऑफ माउथ और रिकमेंडेशन से आया है, राइट? हाँ राइट। रिलेटिव्स में मैंने काफी जन का काम किया है, तो रिलेशन में ही काफी काम निकल रहा था, तो ये चीज का बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मेरे रिलेटिव्स भी बहुत इस चीज में है कि किसी को जानते हैं तो उनको वर्क दे, तो अच्छा चीज है ये चीज। So as a interior designer और या फिर as a business owner, what is your biggest pain point? कभी कभी ऐसा होता है कि टायर्ड हो जाते हैं, और टायर्ड हो जाते हैं वो कब हो जाते हैं जब एकदम हैंडओवर का टाइम रहता है और शायद थोड़ा डिले हो जाता है काम नहीं होने पे, तो उस चीज में ये चीज बोल सकते हैं कि इरिटेशन हल्का सा उस चीज में आता है कि टाइमली मेन स्पेशली ये दिवाली का टाइम जब मेनली सब जन शिफ्ट होने का प्रेफर करते हैं कि दिवाली से पहले शिफ्ट हो जाए, तो वो टाइम में थोड़ा सा रश रहता है कि हाँ उनको मेरे को भी एक रहता है, और वो मैं अपने आप से डिसअपॉइंट हो जाती हूँ कि इतना डिले क्यों हो रहा है, जल्दी 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 वर्क करना है तो जल्दी जल्दी काम होना चाहिए। तो थोड़ा सा वो चीज है, नहीं तो बाकी चीजों से आई एम टोटली फाइन। इरिटेशन और टायर्डनेस थोड़ा सा वो है, बट इरिटेशन ऐसे बोल के कुछ नहीं। You deal with so many vendors and laborers and everyone. So ये concept हो सकता है बहुत सारे जो हम लोग को portray किया गया है via movies and serials and everything कि you have to be very rude and tomboyish to deal with laborers and all the people. But how much I know you, तुम tomboyish मतलब दूर दूर तक नाता नहीं है, and you are so chirpy in nature. So I really want to know कि मतलब you are totally opposite of what is being portrayed कि कैसे कभी लड़कियों को डील विद अगर लेबरर्स। वो लोग अपना काम सही से कर रहे हैं ना तो आई डोंट माइंड, मैं उन लोग पे नहीं चिल्लाती हूँ। लेकिन अगर वो लोग अपना काम सही से नहीं करते ना, तो स्टार्टिंग में जब मेरे जो लेबर्स है ना वो लोग मेरे को सोचे नहीं थे कि मैं चिल्लाती भी हूँ, क्योंकि मैं वो लोग से हमेशा बहुत अच्छे से बात करती थी। एक बार ऐसा हुआ था जब साइट हैंडओवर पे था और काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था, मैंने इतना तेज चिल्ला दिया था आदमी पे। मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर था वो खड़े होकर मेरे को बोल रहा दीदी पहली बार आपको ऐसे बात करते हुए देखा, नहीं तो कभी आपका मुंह से चिल्लाने का भी आवाज नहीं सुना कि ऐसे बोलना है, ऐसे करना है। आप हमेशा अच्छे से बात किया है कि ऐसे ये काम कर दीजिएगा, ये काम ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे ही हुआ है। कभी आपको इतना गुस्सा में हम कभी नहीं देखा। हमें गुस्सा में गुस्सा आ ही जाता है जब कुछ चीजें अगर नहीं अकॉर्डिंगली होती है ना। देखो किसी किसी का बेसिक प्रॉब्लम होता है, कुछ मेजर इश्यूज है या कुछ जेन्युइन रीजन है, वो सब में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो समझ में आता है कि हाँ ये सब रीजन की वजह से नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी जब वो रीजन वैलिड नहीं होता है ना और कुछ गलत हो जाता है ना, तो वो मुझे क्या होता है, कभी देखो गलती हर इंसान से हो सकती है, मैं ये एग्री करती हूँ, लेकिन वो गलती को एक्सेप्ट कर लो ना जाके। आप अगर नहीं बताओगे कि ये गलती नहीं हुआ है, तो उसके बाद उस पूरा कंप्लीट होने के बाद ना उसको करेक्ट करना ज्यादा नुकसान हो जाता है हम लोग का। तो उस चीज में ही मेरे को गुस्सा आ गया था कि वो चीज पूरी कंप्लीट होने के बाद ये सेइंग कि ये तो मेरे से गलती होके हो गया। तो मैंने उसको इस बात के लिए नहीं झाड़ा था कि उससे गलती हुई है, मैंने इस बात के लिए झाड़ा था कि गलती होके उसने मुझे बताया नहीं। अगर वो गलती होके मुझे उसी टाइम बताया तो मैं उसी टाइम उसको करेक्ट करके चीजें कर लेती। तो ये सब चीज का जो प्रॉब्लम होता है ना, उस चीज के लिए मैं हमेशा अपने लेबर्स को यही बोलती हूँ, समझ नहीं आया आप मेरे को 10 बार पूछे, आपको नहीं समझ में आ रहा है, या अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को आके 10 बार बोलिए दीदी ये प्रॉब्लम हुआ है, ये गलती मेरे से हो गया। लेकिन
गलती को छुपा के रखना और लास्ट तक वो मेरे को कभी ना कभी तो मेरे सामने आ ही जाएगा वो गलती, तो बाद में आके मेरे सामने आना ना, वो मेरे को ज्यादा मुझे मुझे गुस्सा आता है उस टाइम पे कि गलती हर एक इंसान से हो सकता है, मुझसे भी होता है बहुत बार, मैं एग्री करती हूँ उस चीज के लिए, लेकिन उस गलती को छुपाना ये मुझसे एकदम बर्दाश्त होता है। और ये मेरे पूरे टीम को ये बात मालूम है, तो वो लोग हर जन ये चीज जानते हैं कि दीदी को जो गलती हुआ है वो आके बता दो कि मेरे से ये गलती हुआ है, दीदी को मालूम है दीदी कैसे हैंडल कर लेगा उस चीज को, लेकिन उस चीज को बाद तक छुपा के रखना, उस डांट के बाद वो लोग नहीं छुप पाता है, तो वो लोग को मालूम है कि बता देना। दैट इज आई वांट टू टेल माय ऑडियंस कि अगर आप थोड़े स्वीट से नेचर के हो एंड यू आर पोलाइट एंड इफ यू थिंक यू कैन नॉट डील विद दिस पीपल, प्लीज मीट दिस पर्सन, टॉक टू दिस पर्सन बिकॉज शी इज द chirpiest person I know. तो मतलब if she is able to deal with such beautifully with labels and everyone, so can you, and you don't have to be that tomboy या हमेशा गुस्से में या rude person. You shouldn't be rude to anyone, you know. सो यस यू कैन डील विद देम, अगर आप ढंग से बात करोगे तो लेबरर्स भी आपकी बात सुनेंगे, और बाकी तो हर टाइप के लोग हर जगह ही होते एक्चुअली मेरे को खुशी होती है कि अगर कुछ कोऑपरेशन से अगर कुछ अच्छा काम हो जाता है ना, तो उसमें मजा भी आता है काम करने में। हर वक्त वो चिल्ला चिल्ला के अपना ही माथा खराब करना, उससे क्या फायदा, इससे अच्छा शांति से अपना दिमाग करो, वो लोग भी अपना काम करें, हम भी अपना काम करें और निकल जाओ। हैं। जब सारा दिन सुनना और सुनाना किसी को भी नहीं पसंद है। एकदम पॉसिबल ही नहीं है, चिल्लाओ तो खुद का भी माथा दुखता है, खुद को भी हेडेक होने लगता है कि यार इतना चिल्ला दिया। सच में जिस दिन मैं चिल्लाती हूँ ना, उस दिन मेरा भी माथा दुखने लगता है कि मैंने इतना चिल्ला दिया कि सो आई एंड दिस हियर, क्योंकि अभी मेरे पास और कोई टॉपिक नहीं है, नहीं बट मेरे पास। एनी टाइम यू थिंक कि नहीं आई शुड टॉक अबाउट दिस, तुम एनी टाइम मुझे बोल सकती हो, वी कैन एनी टाइम डू अ पार्ट 2 ऑफ दिस, बिकॉज अल्टीमेट गोल यही है कि लोग जितना इस इंडस्ट्री के बारे में जान सके, यू नो, उतना अच्छा है। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू इतना अच्छा न्यूज़ देने के लिए, यू नो, वेरी क्यूट एपिसोड। थैंक यू, थैंक्स टू यू यार, तुम नहीं होती तो हम कैसे देते। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था यार, ऑब्वियसली बहुत मजा आया। थैंक